आजादी के 70 साल बाद देश को मिला नेशनल वॉर मेमोरियल। पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया समर्पित। पूर्व सैनिकों से बोले, आप सभी भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व हैं। प्रदेश में कल फिर गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 4 दिन के भीतर दूसरा चुनावी दौरा। चूरू में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मिशन 2019 को साधने में जुटी प्रदेश सरकार। आज से घर घर अभियान का आगाज। अधिकारी मौके पर करेंगे जनता की समस्याओं का समाधान। जयपुर के विकास को लगेंगे पंख। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाई सौगातों की झड़ी। हैंडीक्राफ्ट, टेस्टिंग लैब और टेक्सटाइल म्यूजियम समेत कई योजनाओं का किया उद्घाटन। अब हाईटेक होगा जयपुर एयरपोर्ट। निजी हाथों में होगी रखरखाव की जिम्मेदारी। अडानी ग्रुप करेगा संचालन। और न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट में स्वामी रामदेव ने योग और भोग के अंतर को बताया। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी करेंगे संबोधित। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत सीआईआई की यंग इंडियंस कार्यक्रम से, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट लर्न टुडे लीड टुमारो सेशन में पहुंचे हुए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, यह सुन लीजिए। उद्योग जगत में, किसी भी राज्य में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में बहुत ज्यादा विकसित कोई हो सकता है जब आपके आसपास बहुत ज्यादा दूरियां बनी हो। If the gaps are too much, forget about society. No industry can prosper. And the fact that we have to all think of ourselves as an equal stakeholder in the coexistence and co-development of our society, of our state, of our country is a very, very practical concept. It's not something that looks nice or it's nice to hear and talk about. It's also a very practical reality of our life. Any developed country, any developed economy has progressed only if there is parity and equity in the development issues. सीआईआई का यंग इंडियंस कार्यक्रम सीधा ले चलते हैं जयपुर। You are always inviting industry to come up and see the policy, which is unlike a lot of politicians. So my question is related to that. आप सब political families हैं sir, so how difficult is it or how easy is it to be here or coming from the political background and still not? मैं 15 दिन पहले बोल चुका हूँ कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा लोकसभा इलेक्शंस में। Just making a point. I know what you're trying to say. Your question is how difficult it is to be from a political family and then come here. How easy? How easy? See, it changes the whole texture of the question. I'm smart and I'm how difficult it is, how easy it is. So, first of all, politics is not easy at all. Just as no other business is, having a startup, starting a fund, starting a factory is never easy. Whether you are from first generation, fourth generation, it's always challenging. But politics, I think, is far more challenging because the uncertainties are beyond calculations, as you very well know. Anything can happen. So it's very uncertain, it's very unstable. But the only thing I believe in is that if you have your priorities, you have some convictions, you have some principles that you live by, generally, you'll be okay. You will win, you will lose, you will be in government, you will be out of government, but that should not really dictate how you are as a person. If you keep changing your stand, if you keep changing your attitude and your behavior and your way of thinking with each victory and loss, then I don't think you are doing justice to the profession. So if you are really largely principled, I won't say 100% because it's not possible, but largely you are, have one clear traction and one way to go, then you will actually overcome most challenges. Everybody is in politics to govern and to serve. No one fights elections to lose. Right? And yet, there are times you win, sometimes you lose. The important part is to remain credible. Right? So I know a lot of people who are credible today in Indian politics. वो हारे, जीते, कुछ भी कहें. And I know people who are at the echelons of success in our society who are not credible. I mean, they could be occupying high office. वो लोग मन ही मन जानते हैं कि साहब ये जो बोल रहा है इसका कोई पता नहीं 6 महीने बाद क्या करेंगे. Right?
So that sort of credibility, if you're able to attain, and that can only happen with actions, no words. People have smartened up. Words not equal to credibility. It's your actions. If you still do the right thing, even in a very demanding circumstance, then people know that he or she has the mettle to go ahead with it. So your question. तो CII के यंग इंडियंस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की सरकार की कोशिश है और ज्यादा से ज्यादा निवेश आए इसकी भी कोशिशें हैं। और अब बात पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की। कल पीएम मोदी चूरू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली को लेकर खास तैयारी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चूरू में नमो नमो मिशन 25 के लिए विजय संकल्प। विजय संकल्प से 2019 मुमकिन। आयोजन बड़ा है तो तैयारी भी बेहद खास है। सभा चुनावी है और निशाना मिशन 25 पर। जी हां, टोंक में टशन दिखाने के बाद अब बारी चूरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को शेखावटी को साधने आ रहे हैं। 4 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा आ रहे हैं। पीएम की रैली की तैयारियों को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। विजय संकल्प रैली के लिए बेहद ही खास मंच को तैयार किया गया है। 26 फरवरी को नरेंद्र मोदी चूरू में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में होगी आम सभा। विजय संकल्प रैली के लिए बनाया गया है खास मंच। 28 फीट चौड़ा और 48 फीट लंबा होगा मंच। मंच पर 40 लोगों के बैठने की होगी जगह। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी चूरू में रहेंगी मौजूद। 12 विधानसभाओं से करीब 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का बीजेपी का दावा। लोगों के बैठने के लिए 2,87,000 वर्ग फीट में टेंट लगाया गया है। जो जैसा कार्यकर्ताओं में है, ये सभा बहुत बड़ी सभा होगी और बड़ी प्रभावी सभा होगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये सभा हमको 25 के 25 सीट जीतने की ओर अग्रसर करेगी। चूरू के अंदर बहुत लंबे समय से कोई भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्तित्व आया नहीं और मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है हमारा ये शहर। यहाँ बड़ी संख्या में अकलियत के भाई भी रहते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देने के लिए धरती एक तरह से पूरे राजस्थान में चर्चा और चर्चित रही है। इसीलिए हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि वो चूरू की सरजमीन पर आए, वो आ रहे हैं। जी 2009 में जब मेरे पिताश्री चुनाव लड़ते थे उस समय भी यहाँ पे आए थे चूरू की रैली के अंदर। पूरे इलेक्शन के टाइम पे एक युवा सांसद होने के नाते मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए वो आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस रूप में हमने काम किया है जनता के सामने, हमने चूरू जिले के अंदर जो आपको सब जानते हैं, रेलवे के अंदर, हाईवेज में, स्पोर्ट्स में जो हमने काम किए हैं, उन कामों को लेकर और भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार चला के दी हमने, उसके लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी का दावा है कि चूरू में पीएम की रैली ऐतिहासिक होगी, मिशन 25 के लिए मददगार होगी और इस मंच से सांप्रदायिक सद्भाव का बड़ा संदेश दिया जाएगा। चूरू से न्यूज 18 के लिए मनोज शर्मा के साथ सौरभ गृहस्थी और बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। चलिए और अब आपको दिखाते हैं चूरू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। चूरू में नमो नमो पीएम लिए होंगे रवाना। दोपहर 1:30 पीएम नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। और अब बात पीएम मोदी की रैली को लेकर किए गई सुरक्षा इंतजामात की। चूरू में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 3,300 जवानों को लगाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चूरू में चप्पे चप्पे पर नजर, 3,300 जवान रखेंगे पैनी नजर। 10 आईपीएस को सुरक्षा की दी कमान, क्योंकि पीएम आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर
चूरू को किले में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। सभा स्थल और हेलीपैड पर एसपीजी के अलावा पुलिस के 3300 जवान निगरानी रखेंगे, जबकि 10 आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इसके अलावा 20 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पीएम की सुरक्षा में लगाया गया है। 42 पुलिस उप अधीक्षक, 55 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी रहेंगे तैनात। 7-8 हमारे आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं, उनका डिप्लॉयमेंट होगा। 10 तक के लगभग आईपीएस की संभावना बन रही है। लगभग 20 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए जाएंगे। 42 डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हम लगा रहे हैं और 55 के लगभग हम इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी लगा रहे हैं। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर और सहायक उपनिरीक्षक जो है वो लगभग हम 125 लोग लगा रहे हैं और इसके अलावा लगभग 3200-3300 के लगभग हम हेड कांस्टेबल। विजय संकल्प रैली में पीएम की सुरक्षा के लिए खास तैयारी की गई है। मंच से 60 फीट का पीएम का सुरक्षा घेरा होगा, जिसमें सुरक्षा कर्मी और एसपीजी के जवान तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बाबूलाल दयाल मेरे सहयोगी हमारे साथ चूरू से सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, कल आ रहे हैं प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री चूरू में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? लगभग पूरी हो चुकी होंगी तैयारियां। 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और जो बीजेपी है इस इलाके की वो तो रिकॉर्ड तोड़ रैली का दावा कर रही है। और आप ठीक मेरे पीछे देखिएगा कि मंच पर जो तैयारियां वो अंतिम दौर में है। पीछे जो बड़े बड़े स्क्रीन्स लगते हैं वो लगेंगे, बड़े बैनर लगने हैं वो लगेंगे। और मंत्री जो थे पूर्व में और वर्तमान में जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उनकी ये विधानसभा का क्षेत्र है, वो पूरे दिन यहाँ पर आते जाते रहे और लगातार वो जनता के बीच में जाकर के और कल के लिए न्योता दे रहे हैं। साथ ही राहुल कस्वां, ऊर्जावान युवा सांसद इस इलाके के, तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 साल में चूरू में विकास की गंगा बही है। 10-12 नई ट्रेन यहाँ से शुरू हुई हैं। नेचर पार्क आया है। इंदिरा गांधी नहर का पानी लाने की यहाँ पर कोशिश हुई है। सिद्धमुख नहर के जरिए चूरू को पानी लाने के लिए भी कवायदें तेज हुई हैं। इसके अलावा जो यमुना का पानी चूरू लाने के लिए बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है। युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं, तो उसको लेकर के जनता के बीच में एक सकारात्मक मैसेज दे पाने में बीजेपी कामयाब रही है। कांग्रेस के सामने यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ पर कोई चेहरा नहीं रहा। पिछली बार जिनको टिकट दी थी वो यहाँ पर सक्रिय नहीं रहे और अब कौन चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं है। इसलिए बीजेपी यहाँ पर एक कदम आगे दिखाई देती है और कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो ये पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन खास तौर से जो एक चीज नोटिस करने वाली थी, आज चूरू में हम लोग दोपहर में आ गए थे, यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारियां हैं और चूरू की जनता नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बेताब है लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए और उनको सुनने के लिए कि आखिर किस तरह से नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं चूरू से। पिछले 5 साल में वो यहाँ आए नहीं, लेकिन जब पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का तब उन्होंने यहाँ पर रैली करी थी और बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। ठीक उसी तरह की लहर पैदा करने की एक कोशिश यहाँ चूरू की धरती पर दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि कल बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर यहाँ पर चुनाव में अपने आप को तैयार करती दिखाई देगी। तो बहुत सारी उम्मीदें भी हैं यहाँ की जनता को और किसान। लेकिन बाबूलाल, उम्मीदें हैं लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए भी है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की थी बीजेपी ने, लेकिन ठीक है उसके बाद मिशन 25 भी हासिल कर लिया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो परिणाम नहीं मिल पाया बीजेपी को, तो उसका असर तो देखने को मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़े क्योंकि जो 8 विधानसभा सीटें हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की, उनमें सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास है। 5 पर कांग्रेस का भी और 1 सीट जो है भादरा की वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। तो पिछली मर्तबा की तरह के हालात नहीं है। बीजेपी को मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बीजेपी को यकीन है कि फिर से मोदी लहर पैदा होगी और उसी के दम पर वो चुनाव जीतेंगे। और पिछले 5 साल में सांसद के तौर पर राहुल कस्वां का कार्यकाल ठीक ठाक रहा है। जनता के बीच में उनकी नाराजगी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो चेहरा आएगा कांग्रेस की ओर से वो तय कर पाएगा ये चुनाव किस दिशा में जाएगा और कितनी मेहनत दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल
कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे उसके बाद जो समीकरण बनते दिखेंगे बिल्कुल, उन पर बिल्कुल। सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत निकाय के अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में सर्वे करने का काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। सरकार की ओर से इसके लिए स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग को निर्देश दिया गया, जिसके बाद निकाय के अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में सर्वे करना शुरू कर दिया है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद इस अभियान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फरवरी से 25 मार्च तक डोर टू डोर सर्वे करके व्हाट आर द नीड्स ऑफ द पब्लिक, उसका हम डेटा का संकलन करेंगे। तो डेटा आने के बाद वो अभियान डिजाइन किया जाएगा। यूडीएच मंत्री इस अभियान के जरिए शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को पूरी तरह दूर करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। नगर पालिका हो, चाहे परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, सबको जनरल ऑर्डर निकालने, घर घर जाइए, टीम बना करके घर घर जाइए और जा करके काम पूछिए कि आपके यहाँ क्या काम होना चाहिए। बड़ा काम भी पूछो और छोटा काम भी पूछो। वो सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आएगी। उसके बाद में फिर जब हम डीपीआर वगैरह बनाना, ये करना, वो करना, टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसी साल के अंदर अंदर हम ये अनाउंस कर देंगे कि साहब ये फलानी जगह पे ये काम होंगे। अभी तो अधूरा काम छोड़ गए ये लोग। ये इनकी आदत है कि जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले ऐसा काम चालू कर देते हैं ये क्या समझे जो पूरा न हो। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस अभियान को शुरू करने पर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। प्रकार के आदेश इन्होंने जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार का काम करना निश्चित रूप से दर्शाता है कि चुनावी धड़कन बढ़ गई है और ये चुनाव से डरे हुए हैं। चूँकि कृषि ऋण माफ़ी में भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था और ये ढकोसला करने में माहिर है। इसी प्रकार से ये जो कर रहे हैं कि भाई मार्च तक आप दे दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्यूशन कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना। जनता को बेवकूफ़ बनाने का एकमात्र प्रयास है जो ये कर रहे हैं। चुनाव करीब हैं, लिहाजा इस अभियान को लेकर सियासत शुरू होना लाजमी है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अभियान से शहरी क्षेत्र के लोगों के अटके कामों को रफ्तार मिलेगी। अपने इस अभियान को लेकर के राजस्थान सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में इस अभियान के माध्यम से राजस्थान के शहरों की लाखों जनता इससे लाभान्वित होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस अभियान की राजनीति को साधने में कौन सा राजनीतिक दल आगे निकलेगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। योग और भोग दोनों में अक्सर द्वंद्व रहता है। आम आदमी के मन में इन दोनों स्थितियों को लेकर सवाल रहता है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग और भोग में कोई विरोधाभास नहीं है। जो भी जीवन में साधन है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेस हैं, व्हाट इज विजिबल इन दिस यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड भोग। एंड सोल एंड सुप्रीम सोल, इनविजिबल पीस, हैप्पीनेस जो दिखता नहीं है, वो योग है। इसलिए योग और भोग में कोई संघर्ष नहीं है। योग पूर्वक भोग होगा और उसका सही उपयोग होगा तो देश भी अच्छा बनेगा, राइजिंग इंडिया होगा। सवाल है कि भागम भाग के इस दौर में योग क्यों जरूरी है। चलिए इसका उत्तर हम आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव से जानते हैं। न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु ने बताया कि अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना ही योग होता है। Spirituality is a way of empowering yourself in such a way that we can enhance life
to a point where other people will think it's superhuman. Because as life we have only two ingredients. There is time and there is energy. Time is rolling away for all of us at the same pace, we can't do nothing about it. Just because I am a yogi, I don't get 28 hours a day. I also get only 24. Many times I have tried to get 28, I get only 24. Time is rolling away for all of us. It is only the energy we can manage. Yoga is a way of mastering your energy in such a way that if you live for 10 years, it looks like you have been here for 100 years. That's the amount of work and activity you did. If one doesn't do this, then if they're not in yoga,